Hi, I'm doing rural development chapter, and the topic which I'm going to cover in this video is this one, rural credit and its various sources, right? So I covered some of the a bit idea of rural credit in my previous video. Now when I say rural credit means credit facilities in rural areas. Why do rural areas, people living in rural areas need credit? So that's the question. So the answer comes because there are farmers in the rural areas. Most of them are farmers, and most of them again are marginal or poor farmers. They're not, all of them are not landlords. So what happens is when they have to sow seeds or they need fertilizers after that, they have no savings with them because they are marginal people or they are poor people, poor farmers. So they depend more on credit. So how do they work? They take the loan either from this source or this source, I will cover that. So they go to that particular source and take money. They buy seeds, fertilizers and everything, and then they sow it. Now what happens is they have to wait for 6 months because crop का time क्या है? Crop के sowing से harvesting तक का time बड़ा लंबा है. 6 months they have to wait to get the results. Alright. So now what happens is, till then, now between this 6 months, they have no money even to eat. So they depend on this credit only. So they keep some amount for their own survival, and rest they spend on the items which are related to the agriculture. Now what happens is, if they get good crops, so they get good money after 6 months and they repay the loan and they keep some amount for next 6 months. But most of the time what happens is, because in our country agriculture is a risky business. Now why I say it is risky? Because it is mainly depending upon weather conditions. Alright. So purely, mainly nahi, I would say purely depends upon weather conditions, because everybody does not have modern techniques of farming. Now when I say modern technology, it includes everything, it includes even the regular water. So everybody doesn't have that. So they rely on monsoon. If they get good monsoon, good money, so next sowing will be okay without even taking credit. But most of the time what happens is, उनको उतना ही crop मिलता है जितना वो अपना लोन उतार के कुछ अमाउंट अपनी सर्वाइवल के लिए रख पाते हैं. ओके, सो रूरल एरिया में क्रेडिट बहुत ही कॉमन चीज है. हर फार्मर जो है वो क्रेडिट लेता है. लेता कहाँ से है? देयर आर टू सोर्सेस, non-institutional and institutional sources. So in this video I will cover non-institutional along with the meaning, and next one, because it is the lengthy one, so I'll cover in the next video. Okay, so let's cover it. Rural credit से मतलब क्या है? Reach to question number 3, page number 2. Discuss the topic rural credit. Growth of rural economy depends primarily on infusion of capital. Infusion, do you understand? Taking capital from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agricultural sector. Okay, so most of the time we depend on money, because money only will make money. If I have money, I'll sow seeds, I'll get money. If I don't have, even if I have a huge piece of land, it is of no use. So I need to infuse money into it, only then I will get money in result, in the form of production, right? As the time gestation, now the gestation time between sowing seed and the harvesting seed, ये 6 महीने का time होता है. So time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long. Farmers borrow from various sources to meet their initial investments on seed, फर्टिलाइजर्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस भी तो होते हैं. घर में शादी भी है, डेथ भी है, स्कूलिंग भी है, हायर एजुकेशन के लिए भी बच्चे जाते हैं, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए. सो डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज, इन सब के लिए भी पैसा चाहिए. सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन ऐसे ना आकर ऐसे भी आता है, रूरल क्रेडिट टॉपिक समझाएं, राइट अ शॉर्ट नोट, और why do farmers need credit? So you will talk about gestation period between sowing and
Harvesting is very long, so they depend more on credit facilities, and they need money to buy seeds, fertilizers, and even for their own expenses, maybe for spending on death, or maybe on marriages, or maybe other ceremonies at home. So इन सब के लिए चाहिए होता है. क्लियर? तो आपको बात समझ में आई? आप इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी अपने नोट्स में लिखें. रीचिंग टू द टू सोर्सेस, ये आपको वैसे आइडिया है. नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी, पहली बात नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी जो किसी भी इंस्टीट्यूशन इसको कवर नहीं करता, मतलब ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आता. नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना, तो ये अपना ही पर्सनल मेथड है. इट्स समथिंग लाइक, if I want to take loan, I have two choices. One, I will go to my friend and ask for money. Second, I will go to bank and ask money. So which one is the formal? Going to the bank. Which is informal? Going to the friend. So this is informal source of credit. मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको इसका दूसरा नाम भी बता दिया. So this is also called informal source of credit. तो इसको क्या बोला मैंने? इसको बोल दिया formal source of credit. So you should be aware of the alternative names. When I say this is not in the control of government, so what will I say here? This is under the control of the government. मतलब कहने का, अगर यहाँ कोई dispute होता है, say for example, मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया और मैंने कुछ टाइम के बाद बोल दिया मैंने कब आपसे बोरो किया था. He cannot sue me in the court. Why? Because there is no legality which is involved. It's just the promise which I made it to him. So if I refuse to give, he cannot sue me in the court. There is no document involved. So government कुछ नहीं कर सकती. लेकिन बैंक के केस में, if I deny to give, repay the loan back, so they have all the documents with them. Clear? So protection देने वाले की भी और लेने वाले की. मैंने उसे सारा दे दिया, वो कहता नहीं तुमने दिया ही नहीं. ये भी तो हो सकता है. मैंने उसे सब पैसा दे दिया, बोला नहीं तुमने मेरे से पैसे लिए थे, तुमने वापस नहीं किए, डिस्प्यूट हो गया, तो हम आपस में ही बात करके सुलझा सकते हैं. वहां इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है. दूसरी बात, इसमें एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है. ओके, इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता. कैसे? बैंक के केस में आई वेंट टू द बैंक. मैंने अभी आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल बेटे बताया नहीं है कि रूरल के केस में कौन कौन से हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल आइडिया, ताकि आपको पता हो फॉर्मल इनफॉर्मल कौन से होते हैं. ठीक. सो एक्सप्लॉयटेशन कैसे पॉसिबल है? मैंने जाकर अपने फ्रेंड से पैसा लिया, हमारी बात हुई कि मैंने उसको 3% इंटरेस्ट देना है. ओके, और हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं. चलिए आइए, नॉन इंस्टीट्यूशनल में जो रूरल एरियाज में हम जानते हैं दैट इज मनी लेंडर्स. सो देयर आर मनी लेंडर्स जो फेस वैल्यू पर ही दे देते हैं. फेस वैल्यू समझते हैं? गांव का बंदा है, वो आया, भैया जी लाला जी पैसे दे दीजिए, और लाला जी कहते हैं हाँ कोई बात नहीं रामलाल ले जाओ, कितना चाहिए? 10,000 दे दीजिए. ओके, एक पेपर पर क्या किया? अंगूठा लगवा लिया प्लेन पेपर पर. अब उस प्लेन पेपर पे कुछ भी लिख दो, 10,000 का 1 लाख बना दो. Exploitation is very much possible because these people are illiterate, and money lender has his own interest. He is not like कि उसको तरस आएगा बेचारा है 10,000 ले जाने आया, कोई बात नहीं तू ऐसे मत कर. नो नो नो. और इसमें क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है? वो फोर्जिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ. जैसे 10,000 का मैंने बोला 1 लाख बना दिया, परसेंटेज कुछ और फिक्स हुई बना दी, कुछ और आप कुछ भी लिख दीजिए प्लेन पेपर पर. सो इट इज वेरी मच पॉसिबल. बट बैंक में ऐसा नहीं होता है. एवरीथिंग इज इन राइटिंग. Whatever I am supposed to pay to the bank, it is pre-written, and neither the bank nor can I refuse to pay that interest, or maybe to follow those norms which are written there, right? So exploitation in case of banks are not possible. उसमें क्या क्या आते हैं? सिर्फ बैंक नहीं होते, और बड़े सारे हैं जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है. और क्या चीजें हो सकती हैं? डॉक्यूमेंट्स फोर्जिंग. आपके डॉक्यूमेंट्स इनके पास सेफ नहीं है, और इनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स सेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक कुछ उनके साथ नहीं करेगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई. नॉट ओनली हाई, इतना तक 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट. पर ये पता है बैंक रूरल में कितना लेता है? 2%. नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल. अब आपके माइंड में आएगा अगर 2% मिल रहा है, उधर 60% मिल रहा है, ये है क्यों? वहां एग्जिस्ट ही क्यों करता है? Why these rural people are going to these
मनी लेंडर्स टू टेक मनी, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते एंड ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि बैंक जाएं और फिर पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशंस के चक्करों में पड़े। तो व्हाट हैपेंस इज दे प्रेफर कि भाई हम जाएं और मुझे इमरजेंसी में भी रात को भी अगर पैसे की जरूरत है तो दे विल गो टू मनी लेंडर और ही विल नॉट नेवर रिफ्यूज, ओ कितने चाहिए 5-10 ले जा। अब ये कंफर्ट हो गया, तो इस कंफर्ट के चक्कर में दे पे सच हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतार ही नहीं पाते। मतलब माना जाता है, एक सेइंग है, फेमस सेइंग, फार्मर्स दे आर बोर्न इन डेट, दे लिव इन डेट, दे डाई इन डेट। क्यों? बिकॉज इनका डेट कभी उतरता ही नहीं, इतना हाई है, ये तो इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाते हैं। बहुत केसेस में तो इतना भी होता है कि इंटरेस्ट देना है और वो उनके इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, पैसे का पैसा भी चुका रहे हैं और साथ में उनके घर में फ्री काम भी सारी जिंदगी करते रहते हैं। सो इतना एक्सप्लॉयटेशन हाई है। मैंने आपको इनडायरेक्टली इसका डिफरेंस भी बता दिया, ये नोट्स में नहीं है बट यू मस्ट राइट इन योर नोटबुक बिकॉज दिस कैन कम इन द पेपर। ऑलराइट, चलें स्टडी करें, ठीक है जी। सोर्सेज में आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल में, मैंने ऑलरेडी कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स, मैंने कैटेगरीज भी आप देखेंगे फ्लो चार्ट में दी है, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। यहाँ तो ये भी होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, कमीशन एजेंट्स होते हैं जो वहाँ गाँव में बैठे हैं, ये लोन कैसे दे देते हैं, सिक्योरिटी तो होती नहीं ज़्यादा इनके पास, फार्मर्स के पास, तो इनकी जो क्रॉप है खेतों में खड़ी हुई है, अभी कटी भी नहीं है एंड अभी टाइम है, महीना है उसको काटने के लिए, तो उस खड़ी क्रॉप पर राइट ले लेते हैं कि महीने बाद काट के मुझे दे देना और आज तुम पैसे ले लो। ये डिस्ट्रेस सेल का पार्ट हो गया। क्यों? अंडर स्ट्रेस, बिकॉज आई कैन नॉट इवन वेट फॉर अनदर मंथ बिकॉज आई हैव सम मैरिज एट होम एज अ फार्मर, सो आई वांट समबडी शुड टेक माय क्रॉप्स, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है, आई जस्ट कांट कट इट एंड सेल इट इन द मार्केट। सो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स प्ले हियर वेरी बैड रोल आई वुड से, बट उनका काम है और ये फिर क्या करते हैं, फार्मर्स उन्हें खड़ी हुई क्रॉप थ्रो अवे प्राइसेस पर बेच देते हैं और सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करता है? तो ट्रेडर्स। और कौन है? रिच लैंडलॉर्ड्स भी पैसा देते हैं। सो आई कम टू द पैराग्राफ, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय लेंडिंग देम ऑन वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स आल्सो टू कीप देम इन अ डेट ट्रैप। Understood? Now coming to the institutional sources that I will cover in my next video. So stay connected. Bye bye. Take care.